Hi, a very good evening to all of you. Today already UPSC में essay paper हो चुका है and we have been doing essay paper for last 1 year. In last 1 year we have developed a pedagogy which is going to be very prominent for essay writing. तो अभी बस चेक करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे थे, जो टेस्ट सीरीज में बच्चों को सिखा रहे थे, कितना वो वर्कआउट किया. ठीक है, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट कि पेपर किस तरीके का आया. सो पेपर में अगर हम बात करें, एक सेम टाइप ऑफ ट्रेंड चल रहा है. जो सेक्शन ए है, this is mostly philosophical and to provide some respite to the students, यूपीएससी सेक्शन बी के अंदर थोड़े जीएस के टॉपिक डाल देता है एंड फिलॉसफी तो रहता ही है भाई, वो तो वो हटाते ही नहीं है. So the same kind of trend continues. There is no change in the trend as such. अब फर्स्ट टॉपिक देखिए इन सेक्शन ए, forests precede civilization and deserts follow them. Okay, so this is a cycle of culture versus civilization. और ये टॉपिक हम बहुत बार पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को so that they can get that clarity कि इसका मीनिंग क्या है. जैसे इंडिया के केस में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, डायरेक्टली वो इसी का एग्जांपल, आप चाहो तो उसको एनेक्डोट की तरह यूज कर सकते थे. एनीवे, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. यस, अगर आज की डेट में हम देखें सोशल मीडिया जिस तरीके से हर आपकी मेरे छोटे बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है, दे हैव गॉट ए होल्ड ओवर आवर माइंड. नंबर 3, there is no path to happiness. Happiness is the path. ये थीम हमने बहुत पहले समझ ली थी कि भाई there is always going to be a question on the theme of spiritualism versus materialism. अब ये जो थर्ड वाला थीम है इसी के ऊपर है. बहुत बार हम सोचते हैं, हम गोल्स लेके चलते हैं कि ये हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. नो, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. फर्स्ट यू हैव टू बी कंटेंट एंड देन यू फोकस ऑन समथिंग एल्स. हैप्पीनेस इज द पाथ. द डाउटर्स इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. यस, बिकॉज this was the classic dilemma of the medieval times in Europe कि भाई the faith was saying कि no, आप इस चीज को accept कर लो, have these beliefs without any kind of questions. But then came the scientific revolution which changed everything. People like Copernicus who said that earth is not the center of the universe, earth is revolving around the sun. That's why doubters, people like Copernicus, this is a true man of science. तो साइंस की हमने ऑलरेडी एक थीम क्रिएट कर रखी है कि भाई साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, how that is important for the evolution of the human societies. तो ये सारी जो हमने थीम्स कवर की थी, है ना, आपने इस ऐसे फाउंडेशन कोर्स में, एनरिचमेंट कोर्स में, इवन टेस्ट सीरीज में भी सारी की सारी उन्हीं थीम के अंदर से ऐसे आए हैं. एक दो थोड़ा सा अलग आए हैं नेचुरली, बट लार्जली यू कैन हैंडल द ऐसे विदाउट मच प्रॉब्लम विद दैट. सेकेंड सेक्शन में आप देखिए, फर्स्ट सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फोमो अमंग द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एज वेल एज लोनलीनेस. दिस इज लाइक अ जनरल स्टडीज टॉपिक. बहुत ज्यादा इसमें फिलॉसफी है नहीं. यू टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया. वो आपको अच्छे से समझाना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझा सकते हैं, हाउ दैट ट्रिगर्स डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, उसके बारे में आप लिख सकते हो. देन nearly all men can stand adversity, but to test the character give him power. This is a classic quote of Abraham Lincoln, and this quote specifically आप चाहो तो anecdote history से use कर सकते थे कि how when he came to the power eventually he tried to ensure the union should stay in place. But first he went for the basic methods, but when it did not work out, when the civil war started, he kept on fighting for the safeguarding of the union. So when he was having the power, okay, that's the true character gets revealed, and in the end he was not only able to unify USA one more time, he was also responsible for the abolition of slavery. That's when you are in power, what kind of deeds you do, that's the real you. That's what he's talking about. All ideas having large consequences are always simple. So simplicity is the best sophistication. This is the theme that we cover in our essay foundation course, and the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. तो चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे हमने हर जगह कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट किया था. जैसे कि फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. तो क्लास में हम ये थीम पढ़ाते हैं, सिविलाइजेशन एंड कल्चर. देखिए एसए का जो पेपर है, अब वो जनरल स्टडीज के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो है नहीं, वो कहानी जा चुकी है, वो 4-5 साल हो चुके हैं, अब हमें एक्सेप्टेंस लेके आ जानी चाहिए. इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टडी. तो सबसे पहला कोट ही हमने एक्चुअली यही किया था, civilizations begins with order, grows with liberty and dies with chaos. एग्जैक्ट वही आपका मीनिंग निकल के आ रहा है जो ऊपर है. एग्जाम्पल आप बेसिक से हड़प्पन सिविलाइजेशन, किसी भी सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन का दे सकते थे, इजिप्शियन का दे सकते थे. दैट गिव्स अ काइंड ऑफ एन आइडिया कि भाई हाँ, सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज रहती हैं विच आर सुसाइडल इन नेचर, राइट. और वो भी थी हमने इसमें कवर किया हुआ है, सिविलाइजेशन डाई फ्रॉम सुसाइड नॉट बाय मर्डर.
तो अगर आप एक डायमेंशंस निकालना चाहते थे कि व्हाई द डेजर्ट्स फॉलो देम, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग सुसाइड्स. सी द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? टॉक अबाउट द वॉर्स, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, व्हाट इज हैपनिंग टू सिविलाइजेशन? दे डाइंग बाय सुसाइड. वो हमने डायमेंशन या कवर किया है. सिविलाइजेशन रेस बिटवीन एजुकेशन एंड कैटास्ट्रोफी, राइट? देन कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड. तो हमने बहुत सारी थीम्स इसके अंदर लेके आए थे हम, और ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली कवर किया था. एक टॉपिक भी डाला था इसके ऊपर. एंड गांधी जी का आइडिया भी इसी के आसपास का है. द नेचर प्रोवाइड्स अ फ्री लंच बट ओनली इफ वी कंट्रोल आवर एपिटाइट्स. सो दिस डेजर्ट्स दे फॉलो देम. इसका एक जो मेजर आप मीनिंग निकाल सकते हो वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का है. हड़प्पन सिविलाइजेशन डाइड बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. राइट नाउ वी आर आल्सो फेसिंग द क्लाइमेट चेंज. सो the manner in which we utilize the resources, that's something which we need to understand. तो वही पूरी थीम हमने इसमें अपना क्लास में भी कवर कराई थी. टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने एक टॉपिक इसके आसपास का दिया था. तो दिस इज हाउ दोज हु बिकम पार्ट ऑफ दिस, उनको बहुत फायदा हो रहा है कोर्सेज के अंदर. देन सेकंड थीम है ना, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. नाउ दिस थीम इज अ बिट डिफरेंट, राइट? ये हमने बेसिक लेवल डिस्कशन किया, बट एग्जैक्ट थीम क्या होगा आई डोंट रिमेंबर दैट. बट कुछ थीम हमने इसके आसपास किया था. सिविलाइजेशन रेस बिटवीन एजुकेशन एंड कैटास्ट्रोफी, राइट? तो एम्पायर्स, अगर हम बात करें एम्पायर्स की, तो इन द प्रीवियस टाइम्स एम्पायर्स विल बी लाइक मॉरियंस, एक ज्योग्राफिकल एरिया के लेवल पे एम्पायर बनता था. आज एम्पायर वैसा नहीं है. इट्स अबाउट कंट्रोलिंग ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग पीपल. तो आज की डेट में सोशल मीडिया, ओके, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस, एआई, ओके, यूट्यूब, दिस इज हाउ, दिस इज द एम्पायर जो आज की डेट में एम्पायर ऑफ माइंड बन चुका है. कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दिस होल टॉपिक है ना. ये और सोशल मीडिया वाला टॉपिक बहुत आसपास में है, राइट? तो एम्पायर ऑफ द माइंड जो है वही बन रहा है आज की डेट में. वो इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म जा चुका है. न्यू कॉलोनियलिज्म पे हम एक कंसेप्ट आज की डेट में बचा हुआ है, एंड दैट इवेंचुअली इज नथिंग बट दैट इज आल्सो गेटिंग लिंक्ड विद द आइडियाज. दैट्स व्हाई माइंड जो है, माइंड को आप जितना इन्फ्लुएंस कर पाओगे उतना बड़ा आपका एम्पायर बन सकता है आज की डेट में. So that's a very reasonable kind of a topic which has come this year. There's no path to happiness. Happiness is the path. तो इसके ऊपर ही एग्जैक्ट हमने एक क्लास ली थी. हम एक कंसेप्ट करते हैं wantlessness, right? wantlessness मीन्स आपको कुछ चाहिए ही नहीं ना? और उसके थोड़ा सा ऊपर कंसेप्ट आता है कंटेंटमेंट. तो उसी के ऊपर हमने एक कोड भी समझा था. हैप्पीनेस इज नॉट हैविंग व्हाट यू वांट, ओके, इट इज वांटिंग व्हाट यू हैव, राइट? दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज कोड्स जो इसके ऊपर मीनिंग निकल के लेके आ सकते हैं. इमैनुअल कांत का बहुत अच्छा कोट है जो हमने इसमें बच्चों को समझाया था. द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी बट टू बी वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, मीनिंग द वैल्यू सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम हैप्पी इवेंचुअली. दोज आइडियाज, दिस इज हाउ यू कैन ईजिली गेट आइडियाज कि भाई कहाँ से हमने किस तरीके से इसको लिया हुआ है. तो आप जब भी ऐसे लिखते हो तो आपको थोड़ा सा एक हेल्प आउट चाहिए, और वो इस कोर्सेज के थ्रू हमने प्रोवाइड किया. एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट द थीम्स दैट वी हैड आइडेंटिफाइड, ओके, इन लास्ट अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था, दैट वी वर एबल टू आइडेंटिफाई, वी वर एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स. बिफोर प्रीलिम्स में हमने एक बैच किया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जिन बच्चों ने हमारे साथ में किया, दे आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस. देन द डाउटर्स इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस. साइंस की हमने ऑलरेडी एक पूरी थीम ही करा दी थी इसके ऊपर. द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे. तो डाउट्स, ओके, डाउटर्स, वो एक स्पेसिफिक थीम है जो आपको आनी चाहिए. हर बार जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग आएगा, बट एक आइडिया आपको दे दिया कि यार डाउट एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड डाउट अगर आपने समझ लिया तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी फिलॉसफी जनरेट कर सकते हो क्लास के साथ में, राइट? यहाँ पर हमने टॉपिक भी दिया, साइंस इज नॉट ओनली अ डिसिप्लिन ऑफ रीजन बट वन ऑफ रोमांस एंड पैशन, है ना? डाउट इज नॉट अ प्लेजेंट कंडीशन बट सर्टेनिटी इज absurd, Voltaire. Because that's what it is. If you do not have any kind of doubt, naturally your mind is not working, your content, it becomes belief. It does not remain critical examination, it does not remain critical thinking. Critical thinking will lead to certain doubts, and doubts will lead to progress. Okay, so that's why in this kind of topics, हमने इसको टेस्ट में भी कवर किया, क्लास में भी इसको पढ़ाया. तो इस तरीके से we are very happy that all those students who had become part of this course, बहुत फायदा मिला उनको, और ये कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, which we are able to produce. ओके, सेक्शन 2 में भी अगर हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, हमने इंक्रीजिंग कंप्यूटेशन वुड लीड टू क्रिएशन ऑफ ए डीह्यूमनाइज्ड सोसाइटी. तो हमने इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात किया, राइट? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने थीम के अंदर ही बनाया था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, और वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने इस पर पूछा भी. इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ? व्हाट डज सोशल मीडिया डज?
एक कंपटीशन क्रिएट कर देती है हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। मुझे भी रील्स बनानी है, मुझे भी ऐसे रहना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। दिस क्रिएट इवेंचुअली लीड्स टू फोमो, है ना। इंस्टाग्राम की रील्स देख के हर कोई खुश लगता है लाइफ में, बट रियलिटी पता नहीं क्या होगी, पता नहीं, हमें भी नहीं पता। तो वो एक चीज़ है जो इससे क्रिएट हो जाती है, कॉम्पिटिशन, unnecessary competition. Okay, where you compete with others for showing that you are similarly happy. तो वो एक फोमो क्रिएट करता है हर चीज के लिए। उससे फिर जब हम वो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाते, इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड इवेंचुअली इट आल्सो लीड्स टू लोनलीनेस। तो ये जो टॉपिक्स थे हमारे एनरिचमेंट कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में, दोनों में हमने किया था। एनरिचमेंट थोड़ा छोटा कोर्स रहता है, बट आपको फिलोसॉफिकली अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम करवाते हैं आपको। देन हमने इसके ऊपर एक थीम भी याद किया था, रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग सोसाइटी एंड कल्चर। तो स्पेसिफिकली हमने व्यू पॉइंट्स की बात की थी, नील पोस्टमैन एंड मैनुअल कैस्टल्स। दे गिव देयर वेरी गुड ओपिनियंस, लाइक ही सेज दैट मीडिया शेप्स द वे वी थिंक, फील एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. However, media, particularly television, has transformed our culture into one focused on entertainment, distraction, and instant gratification, influencing our values and priorities. For example, Facebook, Twitter have impacted societal interaction, public discourse, and shaped the way people communicate, mobilize, and form opinion. जब भी कोई किसी एस्से के अंदर आपको एक थीम को कवर करना होता है तो थोड़ा अच्छा उसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देना पड़ता है, वो आपको यहाँ से निकल के आएगा। उसकी अच्छी क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स देने से काम नहीं चलता। सबसे बड़े जो इश्यूज हैं आज की डेट में एस्से राइटिंग में कि हमें लगता है कि 4 एग्जाम्पल लिख देंगे कहानी खत्म हो गई। नो, यू हैव टू फर्स्ट elaborate on that topic and then give certain examples. That's the beauty of writing answers in these essay paper. Manuel Castells explored the concept of network society, emphasizing the central role of media and communication in shaping social, cultural, and political process. Like online platforms like YouTube, TikTok have given rise to new forms of cultural expression and subcultures, where creators have garnered massive followers and have contributed to creation of unique cultural trend, music genre, and artistic movements. तो ये भी आप कुछ पॉजिटिव चीजें भी आप इस टॉपिक के अंदर दिखा सकते हैं कि भाई उसमें पॉजिटिव भी है, ठीक है, बट नेचुरली फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ये नेगेटिव ट्रेंड ही बन रहा है। अटेंशन स्पैन नहीं बचेंगे किसी के, हर किसी का ध्यान कहीं और पे रह रहा है, ठीक है। लर्निंग से फोकस हट गया है, सिर्फ कंजम्पशन चल रहा है, ग्रेटिफिकेशन चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक स्वाइप चल रहा है लेफ्ट राइट। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर। देन nearly all men can withstand adversity, but to test the character, give him power. यहाँ पर भी हमने एक आसपास टॉपिक पूछा था, a man without ethics is a wild beast loosed upon the world, right? तो वो बहुत आसपास में है, that if you do not have those ethics within you, so naturally when you will have power, you will use it for your own benefit. You will not use it for the benefit of the others. तो वो टॉपिक हमने आसपास के इसमें कवर किया है। Then all ideas have large consequences are always simple. तो इसी का हमने एक टॉपिक कराया था, simplicity is the ultimate sophistication. लियोनार्डो डा विंची, इनफैक्ट मणिकांत सर ने भी क्लास में जब डिस्कशंस लिए थे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कैसे आप इंट्रोडक्शन, मतलब पढ़ा भी रहे हो स्क्रीनशॉट में कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है एक्सेट्रा किस तरीके से। सो दिस इज हाउ व्हेन वी टेक दिस कोर्स, राइट, हमारा फोकस इसी चीज पर रहता है कि आपको अल्टीमेट लर्निंग करा के दे। फोकस रहता है सारी थीम्स आपकी कवर कराएं, क्योंकि 8-10 थीम ही हैं जिसके ऊपर बार बार ऐसे के टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, वो आप भी समझ सकते हो, ठीक है, कि भाई कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन की एक थीम निकल रही है, साइंस की एक थीम निकल रही है, एक थीम आपकी कंटेंट वर्सेस जो आपका एक होता है ना मटेरियलिज्म, वो वाली थीम निकल के आती है, एक थीम आपकी सोशल मीडिया की निकल के आ रही है। तो ऐसे कुछ 10-12 थीम है, और भी थीम है जिन पे इस बार टॉपिक डायरेक्टली नहीं है, जैसे हिस्ट्री वाली थीम पे इस बार क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे हमने कुछ 12-15 थीम पकड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हम बार बार बच्चों को समझाते हैं, अच्छे एनेक्डोट्स देते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, कंक्लूजन अच्छे उनको देते हैं, सो दैट दे कैन गेट द आइडिया कि कैसे आगे पढ़ना है। एंड दिस इज व्हाट वी वर एबल टू डू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. The only thing necessary for triumph of evil is good for me to do nothing. तो वही वाली चीज है कि भाई if you will not try, even if you fail, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, that I have not failed 100 times. I have found 100 ways which will not work. So you have to keep on trying. If you will not try, if you will just see it from the perspective कि भाई अगर इसका आउटकम पॉजिटिव होगा तो ही मैं ये करूंगा, it will never work. है ना? This is what Gita says. कर्म करो फल की इच्छा मत करो. This is exactly what it is. Central philosophy. Right? So these kinds of ideas you need. तो वो आपको टेस्ट में भी मिल जाते हैं, वो आपको अच्छे से आपके क्लासेस में भी समझाए जाते हैं. This is exactly what we've been thinking from last 1 year कि नेक्स्ट ईयर जब मेंस का पेपर होगा क्या हम उसको उस तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से हम सोच रहे हैं. So now I'm very happy and satisfied. All those students who have been part of the essay programs, they will be the one who will be very happy कि हाँ भाई हम ये ऐसे लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ना इंट्रोडक्शन में दिक्कत आ रही, ना स्ट्रक्चर में, ना कंक्लूजन में.
and many of them have given us feedback today. That's why I was very grateful, and at the same time I thought ki bhai I should communicate with everyone that now we have developed a very good course which could be of very use to you, and we are going to start a batch, not immediately but it will take 10-15 days. उसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर से start करेंगे, and then you can become a part of it. All right, all the very best, and I hope जितने बच्चों ने हमारे यहाँ से मेंस लिखा था, ठीक है, जो बच्चे मेंस लिख रहे थे एससी का पेपर उन्होंने अच्छे से हमारे यहाँ से प्रिपेयर करके लिखा है, आई होप बहुत अच्छे मार्क्स वो लेके आएंगे, एंड इन द फ्यूचर यू कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस ट्राइब एंड get the maximum marks possible in this paper. All the very best.